Hello friends, my name is Ritesh and I'm back with another analysis edition of The Hindu. Let's get started. Let's look at the top stories for today from our examinations perspective. Okay, so in the Monday edition we also look at what transpired on Sunday. So it's a combination of yesterday's, Sunday's news as well as the Monday's important stories. Let's look at the top stories. Bhupendra Patel to be Gujarat CM. Gujarat has undergone a leadership change. There is a new chief minister in place. CJI raises concern over backlog of criminal cases in Allahabad court. This is yesterday's news. Important thing, we will discuss about this. Magistrates can't extend probe under UAP. Again, something very relevant, something very important which came yesterday. NatGrid to finally see light of the day. We'll talk about NatGrid, what NatGrid is. Assam extends AFSPA. So we'll talk about that's a very important act, AFSPA. LCA light combat aircraft Mk2 to roll out next year. Okay, that's another interesting update from defense. Iran to allow nuclear surveillance. Okay, from international sphere. Then something from sports. US Open is going on and women's singles winners has been announced. Then there was a fantastic article yesterday, e-safety for kids. We'll talk about that. Okay, so we'll talk about a host of things and we can't wait to get started. Okay, let's start. Okay, as I told you, Gujarat has undergone a leadership change. Vijay Rupani has resigned over a weekend and the new chief minister is Bhupendra Patel. Okay, now this change has been brought in keeping in eye the next assembly elections which are due in November 2022, and the BJP wanted someone who can represent the dominant caste in Gujarat, which is Patel's Patidars. Okay, so Mr. Patel's name was cleared by Mr. Narendra Modi to replace Mr. Rupani as he represents the Patidar, dominant Patidar caste ahead of elections, assembly elections in November 2022. Okay, so this has transpired in Gujarat. Okay, let's look at the next update. CJI raises concern over backlog of criminal cases in Allahabad High Court. Okay, so basically our Chief Justice of India was attending a foundation laying ceremony for NLU in Uttar Pradesh, where he raised this concern that Allahabad High Court is basically seeing a lot of backlog in criminal cases, which should not be the case ideally, and he basically urged the High Court judges there to resolve the backlog as soon as possible. Some statistics are here. So CJI said that pendency of criminal cases in Allahabad High Court is very worrying, and according to an affidavit filed by UP government in Supreme Court, Allahabad High Court has 1.83 lakh pending criminal appeals. So many pending criminal appeals. Okay, High Court has 68 judicial vacancies out of a total strength of 160, which means you can almost see almost 50% of them are vacant. Okay, so again obviously you have to basically reinstate the full strength to get this problem resolved. He also basically highlighted the concern to provide good infrastructure for courts in India. He said that after independence, post-independence, this aspect has been completely neglected, and the courts do not have adequate infrastructure, and that is why he proposed, I mean it was already proposed, he reiterated the need for a national judicial infrastructure corporation similar to other infrastructure development organizations which can create good infrastructure, modern infrastructure for courts in India. So that's again one interesting point, National Judicial Infrastructure Corporation. Please make a note on the same. Okay, magistrates can't extend probe under UAPA by Supreme Court. So Supreme Court said, what is UAPA? Unlawful Activities Prevention Act. What is UAPA? Unlawful Activities Prevention Act. Under this act, magistrate can't extend the probe. So under UAPA, which is a very important act, there is a directive that investigation has to be completed within 90 days and police has to file the charge sheet. Okay, investigating agency has to file the charge sheet within 90 days, and if they couldn't file the charge sheet within 90 days and the court is convinced that they need some more time, then they can extend it up to 180 days. Okay, but which court can extend it? Only the special court under UAPA Act can extend this. Okay,
and that's what Supreme Court has said, that court, the other courts cannot extend the duration at their will. Okay, so Supreme Court has held that magistrates cannot favor an investigating agency by extending the period of probe in UAPA cases at will. Under UAPA, the investigation has to be completed within 90 days. If not, the accused is entitled to default bail. So under the UAPA provisions, 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो एक्यूज बेल ले सकता है, एंड only in certain cases and only a special court under UAPA can extend the said period up to 180 days. Okay, if they are convinced कि इसमें accused को detain करने की ज़रूरत है and the investigating agency genuinely needs some more time, then only the special court can extend that duration to 180 days. So that's one important thing. Let's see some background about UAPA. UAPA Act, Unlawful Activities Prevention Act, was passed in 1967. It aims at effective prevention of unlawful activities and unlawful associations in India. The act assigns absolute power to the central government, by way of which the center deems an activity as unlawful. So it can even, for example, it can give an organization a tag of unlawful association, or even an individual as a terrorist. It has death penalty and life imprisonment as highest punishment, and it's not restricted only to Indian nationals. Even a foreign national can be charged under the same act for an act committed on foreign land also. So it's a quite comprehensive law. Okay, so basically some background about UAPA. Now NatGrid, to finally see the light of the day. What is NatGrid? NatGrid is National Intelligence Grid. Okay, it is basically you can say a platform which connects all the databases of various security agencies in India. ठीक है, थोड़ा डेटा लेट से CBI के पास है, थोड़ा रॉ के पास है, थोड़ा वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है, तो वो सारा डेटा कहीं एक जगह पे क्लब करके इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज को एडिशनल पैटर्न्स, एडिशनल इंटेलिजेंस देने के लिए इस तरह का सिस्टम बनाया गया है, एंड इट माइट सून बी लॉन्च्ड. ठीक है, इनपुट्स आए हैं जो होम मिनिस्ट्री से, दैट दिस कैन सून बी launched. So Prime Minister Narendra Modi is soon expected to launch the National Intelligence Grid that aims to provide cutting-edge technology to enhance India's counter-terror capabilities. It is an integrated intelligence master database structure for counter-terrorism, connecting databases of various core security agencies under Government of India. Okay, so basically हमारे पास different security agencies से जो भी data है उसे pull in करके हम एक centralized database बनाते हैं, which can be accessed by any agency. So दो अलग अलग एजेंसीज के एक्सपीरियंस, बेनिफिट्स, इंफॉर्मेशन का फायदा है वो सारी एजेंसीज उठा सकती हैं थ्रू दिस. सो दिस इज सून एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड. असम एक्सटेंड्स अफ्स्पा. देखो, द स्टेट ऑफ असम, ठीक है, इन्होंने अभी एक अनाउंसमेंट किया है दैट दे हैव एक्सटेंडेड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, और उन्होंने असम ने एज अ स्टेट खुद को डिस्टर्ब्ड एरिया कहने का जो ड्यूरेशन है उसे 6 months और एक्सटेंड कर दिया है. तो असम गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेटस ऑफ द स्टेट फॉर अनदर 6 months फ्रॉम August 28 अंडर द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. अब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है क्या? ये एक्ट जो है, इसके तहत कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर हैं वो अपने स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं अगर वो इस तरह के कुछ रेडिकल एलिमेंट्स देखते हैं, टेररिज्म देखते हैं, नक्सलिज्म देखते हैं, कुछ इस तरह के एरियाज देखते हैं जहाँ पर लार्ज स्केल वायलेंस होने की संभावना है या हो रही है. और उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वंस द गवर्नर डिक्लेयर्स इट, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेंड आर्म्ड फोर्सेस और आर्मी टू दैट पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, एंड आर्मी हैज गॉट सम स्पेशल पावर्स इन दिस केस. ठीक है, तो अफ्स्पा एक बहुत कॉन्टेंशियस और बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ है. काफ़ी ह्यूमन राइट अब्यूजेस अफ्स्पा के साथ, ह्यूमन राइट अब्यूजेस के आरोप जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और जम्मू कश्मीर में अफ्स्पा एप्लीकेबल रहा है. ठीक है, तो द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1958 टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर्स एज डिस्टर्ब्ड एरियाज. जैसा मैंने बताया, इट एम्पावर्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू इशू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन following which the center has the authority to send in armed forces, and once declared the region has to maintain status quo for a minimum of 3 months. तो एक बार अगर गवर्नर ने कह दिया कि हमारा एरिया डिस्टर्ब्ड है तो देन एटलीस्ट 3 months के लिए उन्हें वो स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, कम से कम 3 महीने के लिए. ऐसा नहीं है कि आज आपने डिस्टर्ब क्लेम किया, हफ्ते भर बाद बोला नहीं अब तो ठीक हो गया. ठीक है, तो मिनिमम 3 months के लिए आपको वो मेंटेन करना होगा. ठीक है, अब देखो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या करते हैं, तेजस MK2. ठीक है, तो देखो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 अभी प्रिपरेशन स्टेज पर है. उसका डिज़ाइन वगैरह फाइनल हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन फाइनल हो गया है.
और जल्दी ही वो प्रोडक्शन फ्लोर पे जाने वाला है, मेटल कटिंग शुरू होने वाली है उसकी। तो ये न्यूज़ में था कि अगले साल अगस्त के आसपास रोल आउट हो जाएगा और पहली फ्लाइट 2023 अर्ली 2023 में MK2 ले लेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने LCA MK1 के लिए GE एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था इंजन्स के लिए। ठीक है, और LCA MK2 के इंजन्स भी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के थ्रू ही आएंगे। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ अच्छे फीचर्स देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें क्या खास बात है, एनहेंस्ड रेंज एंड एंड्योरेंस। इसके बाद एक ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है जो कि पहली बार इंटीग्रेट किया जाएगा। इस पे कुछ अच्छे हैवी जो आपके एम्यूनिशंस हैं उसको लगाया जा सकता है। हैवी वेपन्स ऑफ द क्लास ऑफ स्कैल्प, क्रिस्टल, मेज एंड स्पाइस 2002 विल ऑल्सो भी इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये पेलोड भी ज़्यादा हैवी कैरी कर सकता है। अभी तक जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो 3,500 किलो तक का पेलोड कैरी कर सकते हैं, ये 6,500 किलो तक का पेलोड कैरी कर सकता है। सो इट इज़ एन एडवांस्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अवेलेबल विद इंडियन एयरफोर्स और ये स्टार्ट हो जाएगा काम करना बाई 2023। तो डिफेंस एरिया से एक इंपॉर्टेंट अपडेट। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, HAL ने GE एविएशन के साथ MK1 सीरीज के लिए फाइल की थी, उसमें 99 एयरक्राफ्ट के इंजन उन्होंने प्रोक्योर किए थे और अब MK2 के लिए हम GE से इंजन्स मंगवाएंगे। अच्छा देखो, अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है, ईरान टू अलाउ न्यूक्लियर सर्वाइलेंस। तो ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आप थोड़ा पढ़ें। ठीक है, तो USA विड्रू फ्रॉम इट और उसके बाद क्या हुआ था कि ईरान ने कहा था कि हम अपनी न्यूक्लियर साइट्स का डेटा नहीं देंगे। ठीक है, तो काफ़ी समय से इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो यूनाइटेड नेशंस का जो एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ आर्म है उसकी मीटिंग होने वाली है बोर्ड में और उसमें ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, ईरान के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए ईरान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये मान लीजिए कि कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो ईरान ने क्या कहा है कि हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे जो वीडियो कैमराज लगे हैं उनमें अगर UN चाहे तो अपने मेमोरी कार्ड लगा सकता है, यानी उसकी फिल्मिंग कर सकता है, उसकी वीडियोग्राफी कर सकता है कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स पे क्या हो रहा है। हाँ, मगर वो मेमोरी कार्ड हम आपको देंगे नहीं। राइट, रिकॉर्डिंग कर सकते हो पर हम आपको देंगे नहीं जब तक कि ट्रीटी ना हो जाए। ठीक है, तो ईरान कहता है कि जब तक हमारे टर्म्स पे बात फाइनल नहीं हो जाए तब तक आप वीडियो रिकॉर्ड तो कर सकते हो बट वो रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी नहीं। सो यू विल नेवर नो अंटिल द रिकॉर्डिंग इज बीइंग ट्रांसफर्ड कि व्हाट ट्रांसपायर्ड इन ईरान। ठीक है, तो ईरान agreed to allow international inspectors to install new memory cards into surveillance cameras at its sensitive nuclear sites and to continue filming there. ठीक है, but Tehran will hold all the recording at its sites as negotiations over the US and Iran remain stalled. ठीक है, तो ये जो IAEA के डायरेक्टर जनरल थे राफेल ग्रॉसी, ये तेहरान में मीटिंग कर आए और वहाँ पर ये फाइनलाइजेशन हुआ है। अब ये काफ़ी टाइम से अटका हुआ था मामला। अगेन आप ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, उस डील में ईरान ने कुछ सैंक्शंस, ईरान ने कुछ रिलैक्सेशंस दिए थे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन रिटर्न फॉर सर्टेन बेनिफिट्स इन इकोनॉमी, कुछ ट्रेड सैंक्शंस हटाने के लिए, बट US विड्रू आउट ऑफ इट। डोनाल्ड ट्रंप ने वो डील से विड्रॉ किया और उसके बाद से फिर ये मामला अटका हुआ है। ठीक है, अच्छा तो इन्हें जिन्हें आप देख पा रहे हैं ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। US ओपन में पहली बार US ओपन टेनिस में ग्रैंड स्लैम इवेंट है। ठीक है, और उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी क्वालिफायर ने, जिसने क्वालिफाई किया उसी ने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। ये प्लेयर जो हैं ये ब्रिटेन से हैं, ब्रिटिश टीनेजर एमा राडुकेनु। इन्होंने फाइनल में कनाडा की प्लेयर लैला फर्नांडिस को हराया। ठीक है, इट वाज ऑल्सो ये जो डब किया जा रहा था टीनेजर फाइनल, क्योंकि बहुत यंग 18-19 ईयर्स की दोनों प्लेयर्स हैं जो पहली बार US ओपन में इस तरह का देखने को कुछ मिला है। तो अ वेरी सेंसेशनल इवेंट। तो ये आप नोट डाउन करें। स्पोर्ट्स की दुनिया में कुछ एक इंटरेस्टिंग अपडेट। अब देखो कल के न्यूज़पेपर में, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो संडे का न्यूज़पेपर होता है ना, संडे के द हिंदू में न्यूज़ कम होती है बट उसके जो आर्टिकल्स हैं, जो 2-3 पेजेस आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, FAQ, प्रोफाइल्स, ये जो 3 पेज आते हैं लगातार बैक टू बैक, ये बड़े अच्छे बड़े इंटरेस्टिंग अपडेट्स होते हैं। ठीक है, तो उसी में एक आर्टिकल आया ई सेफ्टी फॉर किड्स, बड़ा अच्छा आर्टिकल था। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन में एक लॉ पास हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉ है जो इंडिया में भी होना चाहिए, बाकी दुनिया में भी मेरे ख्याल से जल्दी ही देखने को मिलेगा। सो लास्ट वीक UK गवर्नमेंट ब्रॉट इनटू इफेक्ट द एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड, जिसे चिल्ड्रंस कोड भी कहा गया है, एज एन अमेंडमेंट टू द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। What this act does is it operationalizes a set of regulations that will make using the digital space safer for children.
इसका मतलब क्या है? अभी देखो, इंटरनेट कोई एज रेस्ट्रिक्टेड तो है नहीं। 10 साल का बच्चा भी इंटरनेट पे जा रहा है, 12 साल का बच्चा भी जा रहा है, 13 साल का भी जा रहा है, 14 साल का भी जा रहा है, ठीक है। और इंटरनेट की दुनिया तो खुली है, कोई भी कुछ भी एक्सेस कर सकता है। अब हो क्या रहा है कि एज सुन एज यू लॉग ऑन टू इंटरनेट, आपका डेटा कैप्चर करना शुरू कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कुकीज़, ठीक है। आप कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, आप कौन से वीडियोस देख रहे हैं, आप कौन से पेजेस पर जा रहे हैं, ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है आपकी एक यूज़र प्रोफाइल बनाने के लिए कि आप किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। और अकॉर्डिंगली उस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स आपको पिच किए जाते हैं, उस तरह के वीडियोज़ आपको दिखाए जाते हैं, जैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है, ठीक है, या कोई भी एल्गोरिदम। आपने अमेज़ॉन से कोई जूते देखे, आप देखोगे कि उसी के एड्स, वो शूज़ के एड्स आपके पास अलग अलग पोर्टल्स में आने लग जाएंगे। सो ये सारा एल्गोरिदम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि जब बच्चे ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो टिपिकली बच्चों को भी इस तरह से टारगेट किया जाता है। देखो अभी देखते हैं अपन, व्हाट इज द चिल्ड्रंस कोड? चिल्ड्रंस कोड इज अ डेटा प्रोटेक्शन कोड ऑफ अ प्रैक्टिस फॉर ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। तो एक 5 राइट्स फाउंडेशन है जिसने बेसिकली इस तरह के मूवमेंट के लिए, इस तरह के लिए कोड के लिए आवाज़ उठाई थी। ये क्या कहते हैं? इट हैज़ द पोटेंशियल टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द वे दैट कंपनीज कलेक्ट, शेयर एंड यूज चिल्ड्रंस डेटा। तो बच्चे जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनका डेटा किस तरह से कंपनीज कलेक्ट करती हैं, किन किन लोगों के साथ शेयर करती हैं और कैसे उसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सबको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिक्वायरिंग देम टू ऑफर चिल्ड्रन अ हाई लेवल ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन। इसके 15 स्टैंडर्ड्स हैं। इस जो कोड है चिल्ड्रंस कोड, इसमें 15 स्टैंडर्ड्स हैं ऑनलाइन सर्विसेज के, जिसमें ऐप्स भी हैं, गेम्स भी हैं, टॉय डिवाइसेस भी हैं, न्यूज़ सर्विसेज भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बच्चे इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, चाहे वो कोई पर्टिकुलर ऐप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई टॉय साइट देख रहे हैं, चाहे वो कोई गेम्स एक्सेस कर रहे हैं, उनमें सबके लिए कोड्स हैं। व्हाट आर थ्रेट्स टू चिल्ड्रन ऑनलाइन? तो ये क्या कहता है? विदिन 24 आवर्स ऑफ क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया प्रोफाइल, चिल्ड्रंस आर बीइंग टारगेटेड विद हार्मफुल कंटेंट। मतलब आपके बच्चे ने जब भी इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया, 24 घंटे के अंदर उसके पास हार्मफुल कंटेंट आना शुरू हो जाता है। अब ये हार्मफुल कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपके पास एक्सेस है कि कोई दूसरा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपके साथ चैटिंग शुरू कर दे, ठीक है। आपके पास एक्सेस है कि आप कुछ ग्राफिक कंटेंट देख लो, कुछ हार्मफुल कंटेंट देख लो, कुछ सेक्सुअल कंटेंट देख लो, कुछ वायलेंट कंटेंट देख लो, तो वो सारी चीज़ें आपके बच्चों तक पहुंचनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। रिवीलिंग रियलिटी, इंटरव्यूड इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स। और बेसिकली पूरे सोशल मीडिया या मान लीजिए पूरे इंटरनेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कंटेंट बनाया किस पॉइंट पे जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू निकाला जा सके। और रेवेन्यू किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? इंक्रीजिंग इंगेजमेंट, एक्टिविटी एंड फॉलोअर्स। जो भी कंटेंट बनाया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इंगेजमेंट बढ़ाएं, आप इंटरैक्टिविटी बढ़ाएं और आप फॉलोअर्स बढ़ाएं। अब उसके लिए चाहे आपको जिस भी तरह का कंटेंट दिखाना पड़े, चाहे आपको जिस भी तरह के एज ग्रुप को कुछ भी करना पड़े, वो सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो हु डज दिस कोड अप्लाई टू? कल को हमने रेगुलेशंस ला दिए, तो ये रेगुलेशंस किन पे अप्लाई करेंगे? तो यूके की जितनी भी कंपनीज हैं, तो एक टर्म इन्होंने बनाया ISS, इंफॉर्मेशन सोसाइटी सर्विसेज। अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी सर्विसेज में सब कुछ आ गया, आपके ऐप्स आ गई, गेमिंग ऐप्स आ गई, आपके सोशल मीडिया कंपनीज आ गई, आपके बेसिकली जो कंटेंट स्ट्रीमिंग है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो वीडियोस है, चाहे वो किसी भी तरह का कंटेंट है, वो सब आ गया, ठीक है। आपके न्यूज़ और एजुकेशनल वेबसाइट्स आ गई। इन सब के ऊपर ये कोड अप्लाई होगा जो भी कंपनीज यूके बेस्ड हैं या फिर यूके के बच्चों को केटर कर रही है। नॉन यूके बेस्ड कंपनीज दैट यूजेस डेटा ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री, जो भी या तो यूके के बच्चों को केटर कर रही है, चाहे वो यूके बेस्ड है या यूके से बाहर है, उन सब पे ये अप्लाई होगा। और हो सकता है कल को दूसरे देश भी इसे अप्लाई करें। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। देखो, एक बार पहले हमने बात की थी साउथ कोरिया में एंटी गूगल लॉ की, और अब यूके में चिल्ड्रंस कोड की। तो ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेशन सिर्फ हमारे देश के इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दूसरे देशों में भी बड़े इंटरेस्टिंग कुछ लेजिस्लेशंस पास होते हैं जिसके रेमिफिकेशंस हिंदुस्तान पर भी आ सकते हैं, तो उन पर भी हम ट्रैकिंग रखेंगे। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। तो अभी आज हमने क्या बात की? आज हमने बात की अलग अलग स्टोरीज पर, और अब जो वक्त है वो क्वेश्चंस पर बात करने का है। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लास्ट टाइम हम फोर्ड के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने पूछा था आपसे कि फोर्ड हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बंद कर रही है, बट ग्लोबली फोर्ड के CEO कौन है? और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया। जिम फॉर्ले इज़ द करेंट CEO ऑफ फोर्ड। अब आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो थोड़ा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम US ओपन के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ग्रैंड स्लैम जो हम टर्म यूज़ करते हैं टेनिस में, उसमें US ओपन के अलावा कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड स्लैम में टिपिकली 4 टूर्नामेंट्स होते हैं, एक US ओपन है, बचे हुए 3 के नाम आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स डाल सकते हैं।
and I will see to it and respond to you by tomorrow in the tomorrow's edition. ठीक है, till then take care, goodbye and keep reading.